the food, and we can have an idea that gram-positive bacteria, they are more sensitive to certain inhibitory compounds as compared to the gram-negative bacteria. जब हम इनहिबिटरी कंपाउंड्स की बात करते हैं तो बहुत सारी फूड फार्मूलेशंस ऐसी हैं विच मे कंटेन नेचुरली साइट्रेट, निसिन, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिन एनोसोल or butylated hydroxytoluene, sorbates, benzoates. These are the compounds which may naturally present in different food formulations. जो हमारे पास फूड प्रोसेसिंग है उसके रिजल्ट में या इवन we intentionally add such kind of inhibitory compounds into the food. For example, अगर हम पिकल्स वगैरह के एग्जांपल लेते हैं या इसी तरह से हमारे पास जो फूड प्रिजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को प्रिजर्व करते हैं उसमें हम इनमें से कुछ इनहिबिटरी कंपाउंड्स को इंटेंशनली ऐड करते हैं. So such kind of inhibitory compounds, they are effective against the gram-positive bacteria, and they are playing their role to discourage the growth of the gram-positive bacteria. And ultimately, what is happening? Food is being protected or preserved from the growth of the gram-positive bacteria. इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी हमारे पास प्रिजर्वेशन टेक्निक्स हैं जिसमें हम बैक्टीरिया की ग्रोथ को तो इनहिबिट कर लेते हैं, बट यू नो दैट फंगस इज मोर रेजिस्टेंट एज कम्पेयर टू बैक्टीरिया. सो it is difficult to inhibit the growth of the fungus by adding such kind of inhibitors which I have mentioned earlier, citrate, nisin, etc. So to stop to inhibit the growth of the to inhibit the growth of the fungus along with the gram-positive bacteria, it is recommended that we should add some antifungal compounds into the products, into the food products. अभी जो ऊपर ये लिस्ट हमने डिस्कस की है इस लिस्ट में से कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल नेसन, ये जो सेकंड नंबर पे अगर कंपाउंड मैं इसको हाईलाइट कर सकूं, दिस वन द नेसन, दिस इज आल्सो एंटी फंगल. सो इन कंपाउंड्स में से कुछ एंटी फंगल भी रोल प्ले करेंगे. सो दिस इज there is more advantage for such kind of compounds which are playing the role as an antibacterial or as well as antifungal. तो हम फूड फार्मुलेशंस के अंदर ये इनहिबिटरी कंपाउंड्स ऐड करते हैं which helps to preserve the food for a longer period of time. इसके अलावा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दे आर मोर रेजिस्टेंट एज कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव बिकॉज gram negative bacteria they have an outer membrane made up of lipopolysaccharide, so that's why this is somehow difficult to control the growth of the gram negative bacteria into the food formulations. So इस वजह से जब हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का हमें खदशा हो कि इस फूड प्रोडक्ट में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की कंटामिनेशन हो सकती है and they may grow, so in that case we add more broad spectrum additives जैसे कि sulfur dioxide. This is So we treat the food products with such kind of broad spectrum additives to inhibit or to discourage the growth of the gram-negative bacteria. इसके अलावा नॉर्मली ये होता है कि जो फूड फार्मूलेशंस में शुगर कंटेंट या जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है, दिस इज एक्चुअली playing as a role of substrate for the growth of the microorganisms. So इस वजह से बहुत सारी ऐसी फूड्स जिनके अंदर शुगर कंटेंट लो हो, और चूंकि शुगर कंटेंट जो है दैट इज सबस्ट्रेट फॉर द माइक्रोबियल ग्रोथ, और उनके अंदर अगर शुगर कंटेंट कुछ फूड फार्मूलेशंस में लो है और साथ ही साथ हमने कुछ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एडिटिव्स भी ऐड कर दिए हैं, सो इन सच सिनेरियो दैट फूड्स कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. इसके साथ साथ हमने बहुत पहले पढ़ा था शुरू वाले चैप्टर में कि जो यीस्ट हैज एबिलिटी टू ग्रो on the sugar on the high sugar concentrations as well as it may grow on the low sugar concentration. वहाँ पे हमने कुछ शायद क्रैबट्री इफेक्ट की भी बात की थी. तो yeast which is also a fungus and this is unicellular, so yeast has some unique properties that it may grow in the presence of high salts or high sugar concentration. अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे रिमाइंड करवाता हूँ कि फूड प्रिजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से it is considered that whenever we provide the high salt or high sugar concentrations, food may be protected because it would inhibit the growth of the microorganisms. But unfortunately, the yeast has ability to grow in the presence of high salt and high sugar concentrations even. अब yeast में से एक जो yeast हमारे पास important है food spoilage के point of view से, that is Debromyces hansenii, this one.
This has ability to grow even in 24% weight by volume NaCl. This is very high concentration of the NaCl. हमने कभी किसी ज़माने में हेलो टॉलरेंट बैक्टीरिया या हेलोफाइल बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, और वहाँ पे हेलो टॉलरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कि हेलो टॉलरेंट organisms are the organisms which have ability to bear 10% NaCl. But here the point to be noted, yeast, some yeast, for example, Debromyces hansenii, it has ability to grow, or it has ability to tolerate up to 24% weight by volume NaCl. I hope you are familiar with this weight by volume. ये इसको explain करने की ज़रूरत तो नहीं है. What is this weight by volume? कोई बता सकेगा आप में से? Weight by volume, what is that? डेंसिटी तो नहीं है? ये कंसंट्रेशंस के यूनिट्स होते हैं ना, ये पढ़े थे हमने, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम और वेट बाय वेट. तो वेट बाय वॉल्यूम होता है जिसके अंदर 1000 ml जो वॉल्यूम होता है ना, उसको कंप्लीट करने के लिए जो हम ऐड करते हैं ना अपना सॉल्वेंट, उसका वेट लेते हैं. मतलब Okay. सॉल्वेंट हमारा जो होता है वो ग्राम्स में होता है. सॉरी, सल्यूट हमारा ग्राम्स में होता है, सॉल्वेंट जो होता है वो हमारा उसमें वॉल्यूम में लिया जाता है, ml ml में लिया जाता है, वॉल्यूमेट्रिक होता है वो. ठीक है. Okay, इसके साथ साथ there is another yeast which is Zygosaccharomyces roxy. This yeast has ability to grow in 70% sucrose. So this is a very unique property, and that property enables the yeast to grow even in very low concentrations of water and very high concentration of the solutes, and in this aspect they may grow and spoil the foods. So we can say that somehow it is difficult to avoid the food spoilage. So in that scenarios, we use multiple techniques. We add some inhibitors, as well as we store the foods at refrigerated temperatures, etc. यहाँ पे हम मल्टीपल टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि किसी तरह से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट करें ताकि हम अपनी फूड को ज़्यादा टाइम के लिए प्रिजर्व कर सकें. अब यहाँ पे चूंकि बात हो रही है अभी salts and NaCl, sorry, salt and sucrose के point of view से, and we have discussed that they are the yeast which may grow in the very low concentrations of the water and very high concentrations of the solute. So let me explain another phenomena which is termed as water activity. Actually, water activity, or you can say that the availability of the water is required for the growth of the microbes. So here we will define the water activity. This is, sorry. So water activity, this is the ratio of the vapor pressure of the food to the vapor pressure of the pure water. ये सिर्फ इतनी सी सिर्फ बात समझिएगा कि जो vapor pressure है pure water का, that is higher, that vapor pressure is higher as compared to the vapor pressure of the food. किसी भी फूड फॉर्मुलेशंस की अगर हम बात कर लें, फॉर एग्जांपल मिल्क की बात कर लें, मिल्क इज़ अ लिक्विड फूड. दिस इज़ अ फूड फॉर्मुलेशन, लिक्विड फूड है. और मिल्क में जो लिक्विड है, अगर हम इसको थोड़ा हीट करते हैं तो दैट वुड प्रोड्यूस सम वेपर्स. अब चूंकि इसको अगर हम कंपेयर करेंगे प्योर वाटर के साथ, तो प्योर वाटर से प्रोड्यूस होने वाले वेपर अल्टीमेटली ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू द वेपर्स विच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मिल्क. So here we can compare the vapor pressure that is being generated from the pure water and that is being generated from the food formulation. So ratio of the vapor pressure of the food to the vapor pressure of the pure water, that would be termed as the water activity, और हम इसको AW इस सिंबल के साथ नॉर्मली शो करते हैं. सो वाटर एक्टिविटी एक्चुअली हमें मेंशन कर रही है कि द प्रेजेंस ऑफ एक्वस फेज, द प्रेजेंस ऑफ वाटर कंटेंट इनटू द फूड. जितनी वाटर एक्टिविटी ज़्यादा होगी, इट मीन्स दैट उतनी ही वो चीज़ उसके अंदर उस फूड फॉर्मुलेशन के अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा है, और वाटर एक्टिविटी या मैक्सिमम 1 होती है. Keep in mind, the maximum water activity is the one which is the vapor pressure of the pure water. बाकी जितने भी फूड फॉर्मुलेशन है उसमें वाटर एक्टिविटी लेस देन 1 होगी. अच्छा, अब जो ऑप्टिमम वाटर एक्टिविटी रिक्वायर्ड है फॉर द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनटू द फूड फॉर्मुलेशन, दिस इज 0.995 to 0.980.
this water activity is required for the normal growth of the microorganisms. अब इस point of view से अगर हम देखते हैं तो जैसे हमने पीछे example ली है ये Saccharomyces roxy की, it has ability to grow in the presence of 70% sucrose. इसका मतलब है कि ये बहुत कम वाटर एक्टिविटी पे ग्रो कर सकती है ये वाली यीस्ट। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं इस केस में तो कुछ ऑस्मोटॉलरेंट यीस्ट हैं, दे मे हैव एबिलिटी टू ग्रो ऑन 0.60 वाटर एक्टिविटी। नॉर्मल जो वाटर एक्टिविटी रिक्वायर्ड है फॉर द ऑप्टिमम ग्रोथ, दिस इज 0.995 to 0.980, यानी कि दिस इज द लोअर लिमिट 0.980. But in some cases, the yeast which have ability to grow in the high concentration of the salts and the sucrose, they may grow at very low water activity at 0.60. So water activity low होती चली जाएगी जैसे जैसे हम water के अंदर solutes add करते चले जाएंगे. So water activity of the pure water, that would be maximum. अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो मेरे जहन में आ रहा है कि अगर हमने किसी ज़माने में ग्रोथ फेजेस पढ़ी थी, सॉरी फेजेस ऑफ द ग्रोथ कर्व पढ़ी थी, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, डिक्लाइन फेज एंड फेज ऑफ द प्रोलॉन्ग डेथ, 4-5 फेजेस थे. ओके, इफ वी वांट टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ एनी फूड फॉर्मुलेशन, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम किसी तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं फूड फॉर्मुलेशन में उनकी हम लैग फेज इंक्रीज कर दें? तो डू यू थिंक कि इसका कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट होगा फूड प्रिजर्वेशन पे या फूड की शेल्फ लाइफ पे? व्हाट डू यू थिंक? सर होगा। ओके, जितनी ग्रोथ क्या उनकी कम, क्या इफेक्ट जितनी यानी होगा? कि क्या ग्रोथ उनकी यानी कि लिमिटेड रहेगी, वो ज्यादा ग्रो नहीं करेंगे अगर, तो काफी हद तक फर्क होगा ना, शेल्फ लाइफ इंक्रीज होगी। नहीं, मुझे थोड़ा और इसकी सर एक्सप्लेनेशन। हाँ जी, सर इसमें एक्चुअली हम जब लैग फेज को हम क्या कहते हैं इनहांस करेंगे तो लॉग फेज ऑटोमेटिकली उसको क्या करेंगे हम डिक्लाइन करेंगे। उससे फिर वो जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिवाइड काम करेंगे और अपनी एक्टिविटी जो ज्यादा परफॉर्म करेंगे, और उससे क्या होगा जो लैग फेज जो हमारा होगा उसमें क्या कहते हैं उसकी शेल्फ लाइफ भी इनहांस हो जाएगी जो प्रोडक्ट है उसकी। और उसके अलावा जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रहे होंगे तो उससे क्या कहते हैं कि उसका कोई डाइवर्स इफेक्ट नहीं होगा जिसकी वजह से शेल्फ लाइफ इनहांस हो जाएगी हमारी उसकी जो भी प्रोडक्ट होगी। यानी कि वहां पर वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ जो रेट वो नहीं बढ़ रहा। ओके, आपकी बात पे मुझे कुछ पॉइंट्स पे एतराज़ है, अभी उस पर डिस्कशन करते हैं। एनीवन एल्स कुछ उसमें मजीद सर रोशनी को ये डाल सके? बात पूछनी थी मैंने कि मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जो बाहर से इफेक्ट कर रहे हैं उनकी हम लोग या लैग फेस को कैसे चेंज कर सकते हैं? यस, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पे भी रोशनी डालेंगे। अभी जो मैंने सवाल किया ना उसका जवाब चाहिए मुझे। एनीवन, कोई भी भाई? सर जब लैग फेज जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा तो इस तरह से जो माइक्रोब्स है वो एक तो उनकी लॉग फेज में नहीं जाएंगे, उनकी ग्रोथ जो है वो भी कम हो जाएगी और वो एक्टिव जो उनकी ग्रोथ है वो कम रहेगी, जिसकी वजह से शेल्फ लाइफ जो है वो अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगी फूड प्रोडक्ट। ओके, द सेकंड क्वेश्चन इज दैट नो, अच्छा इसमें इसमें बात अभी करते हैं मोइज। मुझे थोड़ा सा आपकी बात पे ये एतराज़ है। देखें, लैग फेज है, उसके बाद लॉग फेज है, स्टेशनरी फेज है एंड डेथ फेज, वट एवर इट इज। तो ऐसा नहीं होता कि अगर हम लैग फेज का टाइम पीरियड इन्हांस कर दें तो लॉग फेज का टाइम कम हो जाए, ऐसा नहीं होगा। लैग फेज इज एक्चुअली द फेज ऑफ टूलिंग अप, द फेज ऑफ द प्रिपरेशंस। हम अगर लैग फेज को इंक्रीज कर देंगे तो उसका मतलब है कि बैक्टीरिया अपने आप को प्रिपेयर करने में ज़्यादा टाइम ले रहा है। whenever the bacteria would be prepared for the divisions, for the binary fission, तो फिर हमारे पास रैपिडली लॉग फेज उसी तरह से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो एक तो ये और बात है। दूसरी बात ये है कि ये शहरेज क्वेश्चन कर रहा था कि हम जो हमारे पास एक्सोजिनस बैक्टीरिया हैं
हम उनका लैग फेज किस तरह से इन्हांस कर सकते हैं। तो शरीयत यहाँ पे जो बात हो रही है लैग फेज या लॉग फेज की, ये जो फूड फॉर्मुलेशंस के अंदर इंडिजिनस जो नेचुरल फ्लोरा है, फॉर एग्जांपल मिल्क है, डेयरी प्रोडक्ट है, इसके अंदर जो नेचुरल फ्लोरा है उसकी लैग फेज की बात हो रही है। क्योंकि वी नो दैट कि जब हम फूड की ट्रीटमेंट करते हैं या हम डेयरी प्रोडक्ट्स की ट्रीटमेंट करते हैं तो हम पेस्चराइजेशन करते हैं, विच इज़ एक्चुअली देयर टू रिड्यूस द नंबर ऑफ द स्पॉयलेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रिड्यूस हो जाते हैं। फिर थोड़े टाइम के बाद, कुछ घंटों के बाद, चूँकि मिल्क इज एनरिच्ड विद द न्यूट्रिएंट्स, तो बैक्टीरिया जो हैं दे आर नाउ अगेन एबल टू ग्रो। तो इस वजह से हमारा पर्पस अगर यहाँ पे यह है कि जो बैक्टीरिया नेचुरली प्रेजेंट हैं फूड के अंदर, अगर हम उनका किसी तरह से लैग फेज पीरियड इन्हांस कर दें, तो अगर पहले वो 2 घंटे ले रहे थे प्रिपरेशन के लिए, नाउ दे मे टेक 4 to 6 hours फॉर द टूलिंग अप। तो इस वजह से हम फूड प्रिजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, आई हैव क्लियर माय सर पॉइंट। हाँ सर एक वो जो शारेज वाला था वो इस हवाले से कह रहा था कि अगर कोई एक्सोजेनेसिस हमारे पास क्या कहते हैं कंटामिनेशन आ सकता है या पैथोजन या कोई बैक्टीरिया आ सकता है, तो उसकी उसकी एज ए ट्रीटमेंट के हवाले से वो बात कर रहे थे कि वो किस तरह हम उसका लॉग या लैग फेस बढ़ाएंगे जिससे वो क्या कहते हैं कि उसको अफेक्ट ना करे। और एक सर जो आपने अभी मुझे ये अभी बताया कि लैग फेज जिस तरह प्रोलॉन्ग होगा उसी तरह लॉग फेज भी प्रोलॉन्ग होगा। नहीं, लॉग हम फेज शेल्फ प्रोलॉन्ग नहीं लाइफ, होगा, उसके बाद लॉग फेज स्टार्ट हो जाएगा, ये कहा। तो सर जब जिस तरह वो आप यही कह रहे थे कि जितना हम लॉग फेज लैग फेज को बढ़ाएंगे तो उसी तरह उसका भी टाइम बढ़ जाएगा लॉग फेज का भी, ऐसा है नहीं सर? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। देखो मैं यहाँ पे ना ड्रॉ करता हूँ एक चलो एक कर्व ड्रॉ करता हूँ। फॉर एग्जांपल अब मेरी ड्राइंग वैसे बहुत बुरी है और मुझे माउस पे मेरा हाथ वैसे नहीं टिकता। फॉर एग्जांपल दिस इज ग्राफ, यहाँ पे हमारे पास लैग होती थी, फिर यहाँ पे ऐसे लॉग होती थी, फिर स्टेशनरी होती थी, फिर डेथ होती थी, ऐसे ही होता है नॉर्मली। ओके यस नॉइस। सर। हाँ, अब दूसरा ग्राफ बनाते हैं। अब अगर हम यूं करें कि जो लैग फेज है इसको एक्सटेंड कर दें, लाइक हियर कुछ 4 घंटे लैग फेज ही चल रही है। फिर जब लैग फेज, अब देयर इज अ टाइम लिमिट, लैग फेज के बाद नाउ द बैक्टीरिया हैज बीन प्रिपेयर्ड या कंडीशंस फेवरेबल हो गई हैं, तो अब यहाँ से फिर स्टार्ट हो जाएगी लॉग फेज, और उसके बाद फिर ये। ओके तो हमने बेसिकली इस पोर्शन को इन्हांस किया, दैट्स इट। बाकी हमने तो सर फेजेस को नहीं छेड़ा। हाँ तो सर मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जिस तरह हमने लैग फेज को इनहांस कर दिया, बैक्टीरिया प्रिपेयर होते रहे, तो उससे क्या होगा कि फिर लॉग फेज भी उसी तरह ही नहीं, जितने प्रिपेयर हुए हैं उतने वो डिवाइड भी करेंगे उतनी स्पीड से। तो हम एक तरफ से शेल्फ लाइफ हाँ अगर इनहांस करते हैं, हाँ, दूसरी तरफ से उसका डाइवर्स उसका वर्स इफेक्ट भी तो हो रहा है ना? वर्ड्स इफेक्ट इसलिए नहीं होगा कि लैग फेज में नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज नहीं हो रहे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे इनिशियली स्टार्ट में 10 नंबर ऑफ बैक्टीरिया थे और 2 आवर्स के बाद दे वर एबल टू ग्रो रैपिडली, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ बैक्टीरिया 10 ही हैं। हमने सेल को इस तरह से स्ट्रेस कंडीशन में रख दिया है कि अगर पहले सेल 2 घंटों में प्रिपरेशन कर रहा था, अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था फॉर द रैपिड ग्रोथ पीरियड, अब वही सेल्स जो हैं दे आर टेकिंग टू मच टाइम, फॉर एग्जांपल अप टू 6 आवर्स। अच्छा, सर तो हम अब ये इसी कह बात, सकते हैं कि हाँ हाँ, हम ये कह सकते हैं कि एक फेज को चेंज करने से उसका इफेक्ट दूसरी फेज पे नहीं आएगा। इस केस में हम यही ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ पे मैं इस बात को अपने अपने आर्ग्यूमेंट को यस सर, मजीद, मेरा भी यही क्वेश्चन है। मैं अपने आर्गुमेंट्स को मजीद यहाँ पे स्ट्रेंथन करता हूँ कि वी आर एक्चुअली डूइंग, वी आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग द अनफेवरेबल कंडीशंस टू द बैक्टीरिया फॉर द लैग फेज। यहाँ पे हम देखें एडिशन ऑफ सॉल्ट्स एंड शुगर्स कर रहे हैं। एडिशन ऑफ सॉल्ट्स एंड शुगर्स एक्चुअली this addition is making the conditions unfavorable for the lag phase. अब जो लैग फेज थी, अगर कंडीशंस फेवरेबल हैं, और इकोलाई की अगर एग्जांपल लें तो इकोलाई का टोटल जनरेशन टाइम जो है वो 20 मिनट्स का है, तो हो सकता है उसकी लैग फेज जो है वो मिनट्स में हो, 3-4 मिनट्स में। अब हमने क्या किया कि वी हैव मेड द कंडीशंस अनफेवरेबल बाय एडिंग द सॉल्ट्स एंड शुगर्स। नाउ बैक्टीरिया is struggling for its survival in these conditions. अच्छा, अब स्ट्रगल के दौरान बैक्टीरिया इज टेकिंग मोर टाइम टू प्रिपेयर द अमीनो एसिड्स, टू प्रिपेयर द न्यूक्लियोटाइड्स, टू प्रिपेयर द बिल्डिंग ब्लॉक्स
which are required for the rapid phase of the growth. तो बस ये सर हमारा पर्पस ये था। एक मिनट सर ये यही तो हमारा फिर एक मिनट यही हमारा पर्पस था कि किसी तरह से हमारे पास ज़्यादा टाइम हमें मिल जाए, फूड जो है वो ज़्यादा टाइम के लिए हम प्रिजर्व कर सकें बाय इंक्रीजिंग द लैग फेज, बाय इंक्रीजिंग द लैग फेज ऑफ द इंडिजिनस बैक्टीरिया। ओके सर एक और बात कि हाँ जब कंडीशंस इतनी अनफेवरेबल हैं कि उन्हें वो टाइम लग रहा है, तो ये भी तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि वहाँ पर जो बैक्टीरिया का नंबर है वो कम भी हो सकता है, 10 से वो कम नहीं, हो जाएगा। हाँ देखें, कम होने की यहाँ पे स्ट्रेटजी हम यूज़ नहीं कर रहे। we are not providing the heat, we are not providing the pressure to kill the bacteria. Already we have treated the food formulation, pasteurization की अगर एग्जांपल लें, यानी कि हमने उसको ट्रीट किया है, already we have reduced the spoilage bacteria. अब हम उसके साथ additionally we are adding or we are trying to increase the lag phase period to enhance the growth or to enhance the storage or the shelf life of the food formulation. Okay. लेकिन सर तो सर हाइपरटोनिक कंडीशंस है ना, तो हाँ उसमें तो फिर ग्रोथ हिंडर हो सकती है, क्योंकि हाँ जाहिर बात है उसके अंदर भी वाटर कंटेंट है, तो वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू उसकी बॉडी से भी बाहर आ सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है, इस तरह से भी उसकी जो लाइक डेथ हो सकती है लैग फेज के अंदर ही। बिल्कुल देयर मे बी एन ऑप्शन इन द ब्रॉडर टर्म्स। लेकिन अभी हम ये भी पढ़ के आए हैं कि हमारे पास बहुत सारी ऐसे यीस्ट या बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं व्हिच हैव एबिलिटी टू सर्वाइव हाई सॉल्ट कंसंट्रेशंस। तो फिर हम उस केस में इसको थोड़ा इस पॉइंट पे स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, बिल्ड नहीं करेंगे अपने आर्गूमेंट को। बट डेफिनेटली यू आर राइट इन द ब्रॉडर टर्म्स। सर हाँ जी जनाब। तो सर यहाँ पर फिर एक और क्वेश्चन है कि हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट हमारा यही था कि हम जब चेंज करते हैं ओवरऑल फेजेस में चेंज आती है। लाइक अगर फैट बैच फर्मेंटेशन है तो उसमें कोई चेंजिंग की है तो वो क्या कहते हैं जितने फेजेस होंगे उसमें आएगी। हम यहाँ पर स्पेसिफिकली किसी एक फेज पे यानी कि चेंजिंग कर सकते हैं, उसका दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जिस फेज पे चेंज की है सिर्फ उसी के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ेगा, चाहे वो पॉजिटिव हम ले रहे हैं या नेगेटिव कर रहे हैं। हाँ हाँ, इसको मैं एक्सप्लेन इस तरह से करूँगा कि डेफिनेटली इफेक्ट होगा नेक्स्ट फेजेस पे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं अब कि यहाँ तक ये जो 6 घंटे हैं हमने फूड के ऊपर लिख दिया कि दिस फूड वुड बी सेफ विद इन अप टू द 6 आवर्स। यहाँ इसके बाद हमने फूड कंज्यूम कर ली। इस केस में हमारे पास जो नेक्स्ट फेजेस हैं ये कंसिडरेबल नहीं है। वी आर नॉट कंसिडरिंग द नेक्स्ट फेजेस। डेफिनेटली नेक्स्ट फेजेस पे इफेक्ट होगा और डिफरेंट तरीके से इफेक्ट होगा। सो मैं यहाँ पे उन फेजेस की डिस्कशन ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को स्लो डाउन कर सकते हैं। स्लो डाउन करने में हमारे पास एक ही फेज़ बचता है, लैग फेज़, जिसको अगर हम इंक्रीज़ कर देंगे तो हमारे पास शेल्फ लाइफ इन्हांस हो सकती है। यू आर राइट, डेफिनेटली अदर फेजेस पे इफेक्ट होगा। और सर जब हम एडिशन ऑफ साल्ट या शुगर कर रहे हैं तो उससे हाँ, हमारी प्रोडक्ट का क्या कहते हैं कि न्यूट्रिशनल वैल्यू भी चेंज होगी। न्यूट्रिशनल वैल्यू चेंज होगी, लेकिन हम देखते हैं कि इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रिजर्वेशन टेक्निक्स ये सॉल्ट्स एंड द शुगर्स हैं, दे आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ द सिरप्स। जैसा कि हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स के पीसेस कट करके उसको डिप करें इन सिरप्स में विच आर प्रिपेयर्ड बाय द सॉल्ट्स एंड शुगर, तो वो न्यूट्रिशनल वैल्यू को एज सच बैडली इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि हम ये सॉल्ट्स एंड शुगर जो है ये वाला फिनोमिना हम लिक्विड डाइट्स के केस में कम इस्तेमाल करते हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट टू प्रिजर्व द सॉलिड फूड्स या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, यस सर। ओके, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? सर मुझे हाँ मुझे एक पॉइंट फिर से क्लियर नहीं हुआ। आपने बोला कि दूसरी फेजेस पे इफेक्ट होगा। हाँ पहले हमने बोला था कि नहीं इफेक्ट हो रहा, हम सिर्फ लैग फेज को इनहेंस कर रहे हैं, उसका लॉग फेज प्रॉपर नॉर्मल जाएगा। तो ओके आप उसी तरह से इफेक्ट कैसे हो रहा है दूसरी फेजेस पे? अच्छा, उस पर इफेक्ट कैसे हो रहा है अभी देखें। यहाँ पे मिसाल के तौर पे इस कर्व के केस में अगर ये इकोलाई की कर्व होती तो इसमें इस पूरे जो जनरेशन टाइम है इकोलाई का, उस पर 20 मिनट्स रिक्वायर्ड है, जो 20 मिनट्स में हम दैट वुड डिवाइडेड एंड अगेन 20 मिनट्स। अब हमने अगर इस केस में इकोलाई का लैग पीरियड इन्हांस कर दिया है और अगर लैग पीरियड ही हमारा 30 मिनट्स तक चला गया है, तो डेफिनेटली उस लैग पीरियड ने बैक्टीरिया की फेज ऑफ रैपिड ग्रोथ को चेंज किया है। नाउ
the phase of rapid growth, यानी कि log phase, that is affected by changing the log.